بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام مسعود ہاؤس والی ہے اور میرے ہائی اسکول میں ٹیچر ٹریننگ کی اسٹوڈنٹ ہوں، بیچ نمبر 24، لیول نمبر 01۔ اس ٹائم میرے پاس ایک نمرہ شہزادی ایک گیسٹ ہے نیوان اسکول بٹ کیمپ کی، اور میرا ایک موضوع ہے کہ آن لائن جو تعلیم ہے وہ کس طرح حاصل کی جاتی ہے، تو ان سے کچھ سوالات کروں گی، اس حوالے سے کچھ ان کا انٹرو لوں گی۔ تو السلام علیکم نمرہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نمرہ، آپ مجھے سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن کروائیں کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے آئی ہیں، اور اپنے ریحان اسکول کیسے جوائن کیا اور اپنے تعلیم کیا کیا لی ہے۔ جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ My name is Hiba Shehzadi and I am a foundation level student at Rehan School, Islamabad Park campus. I am from Bukhara and I still live in Islamabad Parako. میں بخارا سے بلانگ کرتی ہوں اور میں صرف یہاں پہ ریحان اسکول کے لیے شفٹ ہوئی ہوں، میں اکیلے شفٹ نہیں ہوئی، میرے ماموں کی فیملی، دونوں ماموں کی فیملیز یہاں پہ شفٹ ہوئی ہیں، ان کے بچے بھی ریحان اسکول میں آتے ہیں، اور میں اپنے ماموں لوگ کے پاس رہتی ہوں، اور میں بھی ریحان اسکول کے لیے شفٹ ہوئی ہوں یہاں پہ۔ اور آپ اپنا کوشچن ریپیٹ کر سکتے ہیں، آپ کا کوشچن کیا تھا؟ جی جی، آپ نے مجھے آنسر دے دیا ہے۔ میرا کویشچن یہ بھی تھا کہ آپ نے اسٹڈی کہاں سے حاصل کی ہے، اور مطلب جو اسکولوں میں جا کے، روایتی اسکولوں میں جو فزیکل اسٹڈی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنی اسٹڈی بخارا میں DPA اسکول ڈسٹرکٹ پبلک ہائی اسکول سے لی ہے۔ میرا میٹرک تک وہاں کا ہے کہ میں نے میٹرک تک ایگزام دی ہے، میری میٹرک کی اسٹڈی ہے۔ اوکے، ماشاء اللہ۔ تو بیٹا، آپ کو ریحان اسکول کے بارے میں کہاں سے پتہ چلا، اور آپ نے کوئی سوشل میڈیا پر اس کی پوسٹ وغیرہ دیکھی تھی، یا پہلے سے ہی آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ تھا، یا آپ کے فیملی ممبر کو اس کے بارے میں کسی نے سجیشن دیا کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ریحان اسکول میں AI کی ٹریننگ دیں؟ جی بالکل، یہ بتانا چاہوں گی، میرے ایک ماموں ہیں دور کے، میرے مما کے کزن، تو انہوں نے فیس بک میں اسکرول کرتے ہوئے سر سید کی کوئی ویڈیو دیکھی تھی ڈانس اسکول کے بارے میں، انہوں نے اس کو پورا اسکرول کیا، تو انہوں نے میری خالہ جو پنڈی میں رہتی ہے تو ان کو بتایا، تو انہوں نے اطلاع کے اسکول میں اسلام آباد براکوں میں اس کو وزٹ کیا اسکول کو، انہوں نے اسکول کا ماحول دیکھا، اسکول کا انہوں نے ساری ڈیٹیل بتائی، تو انہوں نے اسکول میں ہمارا ایڈمیشن کروایا، پوری ڈیٹیل کے بعد اس کا ماحول وغیرہ دیکھ کے ہم پھر اس طرح یہاں پہ شفٹ ہوئے، جو اصل میں ریحان کا پتہ چلا وہ فیس بک سے پتہ چلا، اور وہ میرے ماموں نے بتایا تھا۔ تو بیٹا، آپ لوگوں کو پھر مشکل تو ہو رہی ہوگی نا، کیونکہ آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ آپ اکاڑا سے ہیں اور آپ لوگ یہاں مطلب اسلام آباد میں ریحان اسکول کے لیے شفٹ ہوئے ہیں، تو کیا آپ کے فیملی والوں کو کوئی مشکل آ رہی ہے، یا مطلب آپ کا فیوچر دیکھنے کے لیے وہ لوگ یہاں پر شفٹ ہوئے ہیں؟ جی مشکل تو کوئی پیش نہیں آ رہی، ہمیں تقریباً تھوڑا شروع میں آئی تھی، ہمیں یہاں پہ 2 منتھس کمپلیٹ ہو چکے ہیں ماشاء اللہ سے، تو اتنی ابھی ہوتی نہیں ہے کیونکہ اب عادت بنانی پڑتی ہے، یہاں پہ رہنا تو ہے ہم، اور پیرنٹس صرف ہمارے مستقبل کے لیے آئے ہیں یہاں پہ کہ ہمارا مستقبل جو اچھا ہو جائے، ہم فیوچر میں کچھ کر سکیں اور کچھ بن سکیں، صرف یہی وجہ ہے، اور مشکلات تو آپ کو پتہ آتی ہیں، مشکلات کے بعد ہی آسانی ہے، تو مشکلات آئیں گی تو پھر آسانی آئے گی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو بیٹا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے فیملی ممبرس میں کوئی اور بھی جو ہے وہ ایڈ ہے، مطلب AI کا کوئی سیکھ رہا ہے، AI کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کے گھر سے جی جی مسلمان میں؟ بالکل، میرے ماموں ہیں، ان کے ایک ماموں کے 3 بچے ہیں یہاں پہ، اور ایک ماموں کی ایک بیٹی ہے، اور ایک میری کزن اور بھی ہے، وہ بھی ہم یہاں پہ مطلب AI کا کورس ریحان اسکول میں ہی ہم میرے ساتھ، جو میرے 5 بچے ہیں مطلب کزنز ہیں، وہ پہلے آئے تھے 1 مہینہ، میں ان سے 1 مہینہ بعد میں آئی تھی، اچھا اس طرح پھر ہمارا ہے، ہم یہاں پہ ساتھ پڑھتے ہیں، مطلب بہن بھائی، مطلب کزنس۔ چلو، یہ تو بہت اچھا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کی فیملی مطلب بہت گڈ کر رہی ہے AI کی مطلب فیوچر ٹریننگ اور فیوچر تعلیم دینے کے لیے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو جی بیٹا، آپ مطلب AI کی تعلیم حاصل کر کے آپ کیا بننا چاہیں گی؟ کوئی ایجوکیشن والا بننا چاہیں گی، یا آپ AI والی بننا چاہیں گی؟ کیا مطلب آپ اپنے لیے کوئی نام کا سجیشن نہیں کیا؟
जी नहीं, मैंने अभी तक कोई नाम नहीं किया। अभी तक तो मुझे यहाँ पे तकरीबन 3 वीक्स कंप्लीट हुए हैं, माशाल्लाह 1 महीना भी मुझे हो जाएगा। और मैंने अब तक अपनी वाला चूज़ नहीं किया। मैं जब तक अपने टास्क प्रॉपर तरीके से कर ना लूँ, मैं उनको सीख ना लूँ, तो मैं तो अभी तक अपना कोई वाला चूज़ नहीं करूँगी। और वैसे भी अगर मेरा हुआ तो मैं ज़्यादातर यही है कि मैंने अपनी जो दूसरी ट्रेडिशनल स्टडी है वो भी साथ कंटिन्यू करनी है। फ़िलहाल मैंने अभी स्किप की हुई है, तो मैंने वो भी साथ करनी है। उसमें भी मेरा सब्जेक्ट आईसीएस है और मैं ये पढ़ भी यहाँ पे अपना एआई का कोर्स रही हूँ। तो इंशाल्लाह आगे फिर फ्यूचर में देखूंगी कि मेरा क्या बनना है। लाइक मेरा जो अभी फिलहाल है कि मैंने सक्सेसफुल वूमेन बनना है, मैंने मेहनत करनी है। अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ पे भेजा है, एक मकसद के लिए भेजा है, मैंने उनका मकसद पूरा करना तो क्या आप ऑनलाइन मतलब ये एआई की तालीम हासिल कर रही हैं, तो आप अपनी रिवायती तालीम जो है या मतलब फ़िज़िकल तालीम जिसको मतलब बुक्स वाली तालीम बोलते हैं, तो क्या आप अपनी बुक्स की जो तालीम है रिवायती, आप उसको भी साथ में कंटिन्यू रखेंगी या फ़िलहाल पहले एआई पे फ़ोकस करेंगी और उसके बाद आप उसको भी साथ-साथ जॉइन रखेंगी? है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैंने वो भी साथ कंटिन्यू करनी है। मैंने अभी फ़िलहाल स्किप की हुई है। मुझे मेरे भाई ने कहा कि अब स्किप करो, लाइक थोड़ा-सा इसको फ़ोकस करो। जब आपको थोड़ी समझ आना शुरू हो जाएगी, आप थोड़ा सीख लोगी, फिर आप उसको फिज़िकल स्टडी जो ट्रेडिशनल स्टडी आप उसको स्टार्ट कर लेना। उसमें मुझे कोई मसला नहीं है, बट पहले मैं इसको करना चाहती हूँ कि इसको मैं समझ लूँ, फिर मैं अपनी वो करूँगी। मेरे मैट्रिक एग्ज़ाम मैं दे के आई हूँ यहाँ पे। मैं आगे एफएससी भी अपनी इंशाल्लाह आईसीएस करूँगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो आप मुझे ये बताओ बेटा कि ऑनलाइन तालीम क्या होती है? जी, ऑनलाइन मतलब जो बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, जिनके घर में सख्ती होती है, तो उनके लिए ये फैसिलिटी ये होती है कि वो घर बैठे अपना काम कर लें। घर बैठे कोई भी ऑनलाइन जॉब कर लें या पढ़ लें। उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो जो मर्ज़ी उनमें से जो मर्ज़ी ऑप्शंस करें। लाइक जिनके काफ़ी हमारे पाकिस्तान में ऐसे हैं कि उनके घर में बहुत सख्ती होती है कि आपने घर से बाहर नहीं निकला, खासतौर लड़कियों को इस चीज़ की परमिशन नहीं होती कि आपने घर से मैट्रिक के बाद बाहर नहीं निकलना। तो उनके लिए कि वो घर बैठे ऑनलाइन अपना काम भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो और वैसे तो ऑनलाइन क्लासेस लेने का एक बहुत अच्छा ज़रिया, लाइक कुछ बच्चे जो होते हैं, जैसे बहुत से बच्चे हैं जिनको स्टडीज़ में प्रॉब्लम आ रही होती है, जिन्होंने अपनी अकेडमीज़ नहीं रखी होती, तो वो ऑनलाइन अपना लाइक यूट्यूब से भी वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। ऑनलाइन टीचर रखा होता है, ऑनलाइन से अपनी सब्जेक्ट कंटिन्यू कर रहे होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, उसकी क्लास खोलते हैं, टीचर का देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो कुछ समझते हैं। ऑनलाइन बहुत अच्छा है तरीका, अगर बच्चे और हम बड़े अगर उसको यूज़ के मुताबिक इस्तेमाल करें, यूज़र इस्तेमाल ना करें। तो आप मुझे ये बताएँ कि ऑनलाइन तालीम का जो आगे मुस्तकबिल है, वो क्या होगा? देखा जाए तो वैसे तो आगे फ्यूचर ही सारा ऑनलाइन का है, फ्यूचर ही सारा एआई का है। तो ऑनलाइन फ्यूचर में ज़्यादा काम करेगी, लाइक ये जो फिजिकल भी काम करेगी, बट ज़्यादा बच्चे जो हैं आजकल भी देखें तो ज़्यादा ऑनलाइन ही देख रहे हैं, ऑनलाइन ही कर रहे हैं सब कुछ। उनके लिए जो काम लग रहा है मतलब जो उनके लिए आसानी है, तो वो ऑनलाइन ऑनलाइन से ही हो रहा है। तो आगे फ्यूचर सारा ऑनलाइन का ही है। जो ऑनलाइन तालीम है, इसने मतलब रिवायती तालीम को जो मतलब ये जो फ़िज़िकल तालीम है, बुक्स वगैरह की, इसको कैसे तब्दील किया? इसमें तो फर्स्ट तो ये आ जाता है कि इसने जो लोगों की होती है ना कैद, मतलब जिसे कहते हैं, वो ख़त्म हो गई है, जगह उसे तब्दील कर दी है। अब हर बच्चा, हर बड़ा घर बैठे अपनी तालीम हासिल कर सकता है। उसके लिए ये नहीं है कि मैं बाहर नहीं जा सकता, ये निकल नहीं सकता, मुझे इजाज़त नहीं है, तो वो घर बैठे अपनी तालीम को जारी कर सकता है। ऑनलाइन एक तो ये है। और रवायती तालीम उन बच्चों के लिए भी है और मतलब जिनके घर में कोई ऐसा मसला नहीं है। बट ऑनलाइन ज़्यादा है कि आजकल ज़्यादा बच्चे भी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा मज़ा तो देखा जाए तो मैम मुझे तो फिज़िकल में ही आता है। अगर फिज़िकल में आपको जो चीज़ समझ आती है, आपको ऑनलाइन भी नहीं आती। बट फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो सारा तो ज़माना ही आगे ऑनलाइन का है। ऑनलाइन जो तालीम है, इससे मतलब स्टूडेंट को क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है ऑनलाइन तालीम से? इससे ये हो रहा है कि ऑनलाइन तालीम से तालबा को बहुत सारा फ़ायदा होता है कि मतलब देखा जाए किसी के पास तो अब सहूलत नहीं होती जी और वो मतलब फ़िज़िकल नहीं जा सकते, तो जी, जी। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है
کہ ہم دیکھیں اگر جاتے ہیں اسکول فزیکل ہم پڑھنے کے لیے تو ہمیں وہاں پہ بہت ساری چیزیں ملنے انجوائے کرنے کو ملتی ہیں. ہم اپنی ٹیچر سے ملتے ہیں, ہم اپنے دوستوں سے ملتے ہیں. فزیکل میں اپنا الگ مزہ ہے اور آن لائن میں اپنا الگ مزہ ہے. جو آن لائن کا عادی ہو جاتا ہے وہ آن لائن میں ہی پڑھتا رہتا ہے, اس کو آن لائن میں مزہ آتا ہے. لائک میرے بھی کچھ تھی کلاسز اپنی یوٹیوب سے سمجھے تھے آن لائن ہی, تو وہ مجھے کافی اچھا سمجھ آیا تھا اگر سمجھنے والا ہو تو. چلیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جو ٹاسک وغیرہ دیے گئے اے آئی کے ریلیٹڈ، آپ نے کافی سارے ٹاسک کیے ہیں ماشاء اللہ سے، تو اس میں آپ نے کیا کیا ٹاسک میں کیا ہے ابھی تک؟ جی میں نے اپنے فاؤنڈیشن لیول کے ٹاسک میں کاؤنٹ کریٹ کرنا سیکھا ہے, اپنی کینڈا پوسٹ, اسٹوری پوسٹ, سانگ بنانا, کال اینی ڈیٹیکس سیکھی ہے میں نے. اس کے بعد میں نے کوڈنگ ٹاسک کیے ہیں میں نے اپنے. ابھی تک فی الحال میں نے یہی کیا ہے. تو آپ کو ان ٹاسک میں سب سے انٹرسٹنگ جو آپ کا فیوریٹ ٹاسک بنا ہے وہ کیا، کون سا بنا ہے ابھی تک؟ فیوریٹ تو سارے ہی ہیں, بٹ زیادہ اچھا مجھے لگتا ہے کال اینی ڈیٹیکس کرنے میں, کیونکہ اس میں آپ کی جو لسننگ, اسپیکنگ اور جو آپ انگلش امپروو, آپ کی اس میں انگلش امپروو ہوتی. مجھے ڈیٹیکس اور کال اینی زیادہ اچھا لگا. ویری گڈ. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کوڈنگ ٹاسک کی ہیں تو اس میں ابھی تک آپ نے کیا کیا بنانا سیکھا ہے؟ کوئی گیمس بنانا سیکھی ہیں یا پھر کوئی ویدر بنانا سیکھا ہے؟ کیا کیا آپ نے اس میں ابھی تک سیکھی ہے؟ ابھی تک تو میرا فاؤنڈیشن لیول ہے, ابھی تک میں نے کچھ ایسا مطلب بنایا ہے, بٹ میں نے کلاؤڈی سے بنوایا, کلاؤڈی اے آئی سے بنایا ہے. تو انشاءاللہ میں خود بھی بناؤں گی. اور کلاؤڈی اے آئی سے میں نے اب تک اپنے ڈیجیٹل کلاکس وغیرہ, سمپل کلاک, یہ میرے جو ٹاسک ہیں, میرے جو ٹاسک کی ٹائٹل تھے میں نے وہ بنائے ہیں, وہ کرنا سیکھا ہے میں نے. ان کو کیسے کام یوز کیا جا سکتا ہے, ان کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں ہم, یہ سیکھا ہے. گریٹ. تو بیٹا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب آپ نے مطلب روایتی تعلیم بھی حاصل کی ہے، آپ ابھی اے آئی کی بھی تعلیم حاصل کی ہے، تو آپ کو ان میں کوئی فرق وغیرہ نظر آ رہا ہے؟ کوئی آپ کو فیوچر کے حساب سے یا مطلب آنے والے مستقبل کے حساب سے آپ کو کوئی فرق نظر آ رہا ہے اس میں؟ بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. ابھی بھی دیکھا جائے تو جو ہے کہ ہمارے ملک میں 50 چیزیں تو 16% تو اے آئی کا ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر فیوچر میں ہم آگے 3-4 سالوں میں دیکھیں تو سارا ہی کام جو وہ آن لائن ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. فزیکل ویسے اگر میرے حساب سے دیکھا جائے تو فزیکل تعلیم بھی بچوں کو, جو روایتی تعلیم ہے, ٹریڈیشنل ہے, وہ بھی بچوں کو ایجوکیشن ملنی چاہیے. یہ نہیں کہ بچہ سارا آن لائن نہیں کرے, ان کو ٹریڈیشنل تعلیم بھی ملنی چاہیے, کہ اس سے بچوں کے ڈسپلن, اس سے بچوں کے بیہیویئر, اس سے بچوں کے ہر چیز کا پتہ چلتا ہے. ہمیں وہ بھی حاصل کرنی چاہیے. اور اے آئی تو ہمارے فیوچر کے لیے, بٹ جو ہمارے ابھی کے لیے وہ ہمیں فزیکل تعلیم بھی اپنی حاصل کرنی چاہیے. اور آگے زمانہ ہی سارا اے آئی کا ہے, تو اس کے حساب سے ہم جو کر رہے ہیں ابھی اے آئی کے کورس ہم سیکھ رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو میم جو بچے ڈگریز پہ لے لیتے ہیں ان کے پاس نہیں ہوتا, جو اب ہم اپنی اس ایج میں سیکھ رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں اس ایج میں سکھایا جا رہا ہے, اور وہ ریحان اسکول ہمیں سکھا رہا ہے یہ چیز. یہ بہت اچھی ہے کہ ہم اس ایج میں اپنی یہ اکارڈنگ سیکھ رہے ہیں. اپنے کینوا پوسٹ بنانا سیکھ رہے ہیں, اسٹوری پوسٹ کرنا سیکھ رہے ہیں, ہم اپنے کینوا کو چلانا سیکھ رہے ہیں, یوٹیوب کو صحیح استعمال میں لا رہے ہیں, فیس بک کو صحیح استعمال میں لا رہے ہیں. اور خاص طور سے زیادہ بات ہے چیٹ جی پی ٹی. چیٹ جی پی ٹی کو بچے اپنے روز کے کام میں استعمال کرتے ہیں. اس کو وہ ہمارے روز وہ بھی ایک اے آئی ٹول ہے جس کو ہم اپنے ٹاسک میں استعمال کرتے ہیں. روزانہ وہ ہمارے ٹاسک میں استعمال ہوتا ہے. وہ ہمیں ڈسکرپشن دیتا ہے, وہ ہمیں ہر ایک چیز ایکسپلین کرتا ہے. لائک اس میں یہ فرق ہے کہ جو ہمیں انسان 2-3 دن میں کر کے دیتا ہے ایک چیز, تو وہ ہمیں جو اے آئی جو بھی ٹول ہے, چیٹ جی پی ٹی جو بھی, وہ ہمیں ود ان سیکنڈ, ود ان منٹس وہ چیز بنا کے ہمیں ایکسپلین کر کے دے دیتا ہے. یہ فرق ہے بس. یہ تو بہت اچھا آپ نے آنسر دیا. تو بیٹا مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں مطلب کہ انٹرویوز کے ٹاسک دیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم اے آئی کا جب سیکھتے ہیں تو آپ جیسے آپ فزیکل سیکھ رہی ہیں، تو ہمارے اندر ایک مطلب کانفیڈنٹ نہیں ہوتا، مطلب ہم کسی سے انٹروڈکشن نہیں کر سکتے، کسی سے مطلب بات نہیں کر سکتے. تو جب آپ کو پہلی بار آپ کو بولا گیا کہ آپ نے اپنے انٹرویوز وغیرہ بھی کمپلیٹ کرنے ہیں، تو آپ کو ظاہر ہے انسان کے اندر کانفیڈنٹ نہیں ہوتا، تو آپ کو کیا فیل ہوا کہ آپ یہ مطلب انٹرویوز کر سکیں گی یا آپ کو یہ ٹف لگ رہا تھا؟
जी, बिल्कुल। वैसे तो इंटरव्यूज़ करने से तो इंसान में कॉन्फिडेंस पैदा होता है और जो मेरे अंदर मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर थोड़ा-थोड़ा आ गया है। मेरे अंदर बोलने का थोड़ा तरीका और कॉन्फिडेंस आ गया है। और दूसरी बात, मुझे इंटरव्यूज़ करने में कोई मसला नहीं था। मैं जब आई थी शुरू-शुरू में, तो मैं अपनी जब टास्क करती थी, मैंने 2-3 इंटरव्यू किए थे, सेल्फ इंटरव्यू अपनी दोस्तों के साथ लाइक किए थे। जब मैम ने मुझे कहा था ना कि आपने बॉयज़ साइड पे भी इंटरव्यूज़ करने हैं, लाइक अपने लड़कों के साथ भी करने हैं, तब मुझे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हुआ था कि नहीं, मुझे लड़कों के साथ भी इंटरव्यू करना है। फिर मैम ने समझाया कि नहीं, आपने इंटरव्यूज़ अपने पूरे करने हैं, आपने कॉन्फिडेंस से बात करनी है, आपने डरना नहीं है, आप अगर डरोगे तो आपसे इंटरव्यू सही नहीं होगा। तो तब से मैंने अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस वो जज़्बा पैदा किया कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं इंटरव्यू करूँगी। और माशाल्लाह से मेरे अब ज़्यादातर वही मेरे इंटरव्यू लड़कियों के साथ किए हैं और मुझे इतना पता है कि उनके साथ कैसे बात करनी है और किस तरह बात करनी है, किससे क्या बात करनी है, इतना मुझे अब अंदाज़ा हो गया और कॉन्फिडेंस से बात करनी है। और पहली बात, अगर आप जिस चीज़ की मतलब ठान लेते हो कि मैंने ये करना है, तो आप वो कर के ही रहते हो। तो मुझे ये मेरे एक मामू ने बात की थी कि आपने जिससे भी जो बात करनी है, आपने उससे इंटरव्यू लेना है, जो भी करना है, बस डरना नहीं है, आँखों में आँखें डाल के बात करनी है। अगर डरोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे अपनी लाइफ में। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। आप मुझे ये बताएँ कि एआई ने अभी तक ऑनलाइन वर्क में क्या-क्या सहूलतें दे दी हैं? एआई ने ऑनलाइन ऑनलाइन बच्चे अपनी स्टडी करते हैं। ऑनलाइन बच्चे ऑनलाइन हम अपनी शॉपिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन अपने कोर्सेस मंगवा लेते हैं। अब तक तो ज़्यादातर काम ऑनलाइन ही होता है। घर बैठे लोग अपनी हर चीज़ मंगवा रहे होते हैं, फाइल्स मंगवा रहे होते हैं, ऑनलाइन अपना काम कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत से कम लोग हैं जो बाहर निकलते होंगे, ज़्यादातर ऑनलाइन ही अपने घर में ही चीज़ें मंगवाते होंगे। तो आप ये बताएँ कि आने वाले वक़्त में मतलब एआई का कहाँ तक मतलब रद्द-बदल हो जाएगा? क्या मतलब काफ़ी चेंजिंग आएँगी या इन फ्यूचर हमें कुछ तब्दीलियाँ मिलेंगी इसमें? या फिर हम जैसे अभी चल रहा है यही सिस्टम रहेगा? अ, अब तक तो आ चुकी हैं एआई में चेंजेस। अगर फ्यूचर में देखा जाए तो पूरी ही चेंजेस आ जाएंगी। लाइक जो हम हल्का फुल्का मतलब देखा जाए तो चलने में भी लोग ज़्यादा आवाज़ार होते हैं, उनको काम करने में भी मसला होता है, तो उनके लिए भी बहुत आसानियाँ पैदा हो रही हैं। हमारे इधर मुल्क में नहीं हो रही है, आउट ऑफ कंट्रीज़ में है कि ये ऐसी सूरत आ गई कि वहाँ पे ये चीज़ बन गई है, अब लोग काम भी नहीं करते, ये भी नहीं करते। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इंसान को अपनी मदद खुद करनी चाहिए, अपने काम खुद करने चाहिए, हर चीज़ किसी पे नहीं सौंपनी चाहिए। और अगर देखा जाए तो फ्यूचर में तो एआई का ही है। इंसान बहुत कुछ बना सकता है एआई में, अगर हमारा मुल्क तरक्की करे तो। अब वैसे हमारे मुल्क में देखा जाए तो अभी तक हम उस स्टेज पे नहीं हैं, हम अभी तक बहुत पीछे हैं अपने हर कंट्री से बहुत पीछे हैं। और एआई तो विद इन मतलब आप देखिएगा कि 2 से 3 सालों में बहुत सारी चेंजेज़ हमारे मुल्क में हो जाएँगी। एआई ही सारा मतलब ऑनलाइन ही सारा कुछ काम होगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है और इंशाल्लाह जी, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मतलब पाकिस्तान को थोड़ी सी तरक्की दे, क्योंकि हालात इस तरह जा रहे हैं तो हम सबको ये काम करना आमीन। पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या एआई ने टीचर्स की या स्टूडेंट की क्या क्या मदद की है? स्टूडेंट्स के लिए तो ये है कि वो एआई में अपनी स्टडी इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं उसको स्टडी के लिए। तो और टीचर्स के लिए भी यही कि आसानी हो गई कि टीचर्स अपने लेक्चर को प्रिपेयर्स कर लेती हैं। और टीचर्स के लिए भी आसानी हो गई कि वो घर बैठे हुए भी अपनी ऑनलाइन ट्यूशंस दे सकते हैं, अकेडमी दे सकते हैं। और बच्चों के लिए ये है कि वो भी अपनी क्लासेस ले सकते हैं, अपनी ऑनलाइन ट्यूशंस ले सकते हैं। वैसे तो ये फैसिलिटीज हुई हैं बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए सहूलत हुई है। और बच्चों के लिए तो बहुत सारी सहूलत है, अगर वो फ़ोन को और ये हम लैपटॉप जो इस्तेमाल करते हैं अपनी डिवाइसेस, इनको यूज़लेस इस्तेमाल ना करें, अगर यूज़ के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो क्या एआई ने टीचर को जो है वो अर्निंग के लिहाज से कोई मदद की है, या मतलब टीचर्स को कोई अर्निंग हो रही है एआई के थ्रू? हो रही है अर्निंग। टीचर्स तो कर रही हैं अर्निंग अपनी। अपनी नई स्किल्स सीख के टीचर्स अपनी अर्निंग करती हैं। तो आजकल के देखे दौर में तो बहुत सारी नई ऐप्स निकली हैं, नई स्किल्स निकली हैं जो टीचर्स सीखती हैं उसको और आगे सिखाती हैं, तो वो भी अपना अर्न कर रही हैं। अर्निंग भी सिखाया जा रहा है और
बच्चे भी अगर देखा जाए तो छोटे बड़े भी आजकल ऑनलाइन ही अर्न कर रहे हैं। टीचर्स नहीं कि टीचर्स ही लाजमी कर रही हैं, बट टीचर्स को ये है कि वो नई स्किल सीखती हैं, आगे सिखाती हैं और वो भी अर्न कर रही हैं। एआई ने ये एक सहूलत दी है। क्या एआई की तालीम जो है मतलब पाकिस्तान में जो स्कूल्स बने हुए हैं, चाहे गवर्नमेंट के हैं, क्या है मतलब प्राइवेट हैं, तो एआई की तालीम सब टीचर ने हासिल की हुई है, या मतलब अभी तक मतलब मुख्तसर मतलब कुछ मकामात पर मुकर्रर है कि यहाँ तक की तालीम हासिल हुई है एआई की? अभी तक तो टीचर्स में देखा जाए तो एआई तो ऐसा कुछ नहीं है जो अब के दौर पे जो टीचर्स बन रही है मे बी कि वो एआई का कुछ काम कर रही हो, एआई का अर्न कर रही हो, एआई को सीख रही हो। बट जो पहले ज़माने के टीचर्स हैं उन्होंने अब तक कोई एआई का कुछ सीखा नहीं है। अगर देखा जाए तो वो पहले ज़माने के टीचर्स हैं, बट वो भी अपने लेवल की बहुत अच्छी टीचर्स हैं, उनको समझाना आता है। कि पहले ज़माने की स्टडीज़ भी बहुत अच्छी होती थी, आजकल की स्टडीज़ भी बहुत टफ हो गई हैं। लाइक अगर ट्रेडिशनल स्कूल में देखा जाए तो टीचर्स बहुत सारी हमें बुक्स दे देती हैं, हमने उनको पढ़ना होता है, बच्चे को उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, वो उनको समझते नहीं है, ये चीज़ है। और टीचर्स जो आपने क्वेश्चन किया उसका ये कि क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं आप अपना? हाँ, मेरा कहने का मकसद है कि मतलब मुख्तलिफ स्कूल्स में जो टीचर को मतलब तालीम जो है एआई की वो मिली हुई है, उनको हासिल है या नहीं हासिल है, कहने का मेरा मकसद ये है। नहीं नहीं, अगर दूसरे स्कूलों में देखा जाए तो नहीं है, ट्रेडिशनल स्कूल्स में उनको अभी तक नहीं है। बट मेरा ये कहना है कि उनको ये सोचना चाहिए कि वो अपने स्कूल में कोई एक दिन या कोई एक पीरियड जो हो वो एआई का रखें, जिससे बच्चों को डिवाइसेस चलाना और उनको ऐप्स का बताएं कि ये ऐप इसके मुताबिक इस्तेमाल की जाती है और उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये कहना है। पर देखा जाए तो पेरिस स्कूल्स जो ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं उनमें अब तक कोई भी एआई का ऐसा टीचर नहीं है कि जो ऐसे काम कर सके और सिखाए। एक कमज़ोर मतलब स्टूडेंट है और उसको अपने मैथमेटिक के क्वेश्चन नहीं आ रहे और उसको अपने इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो उसको अपनी टीचर से भी पूछते हुए मतलब घबराहट होती है कि वो अपनी टीचर से किस तरह मतलब सवालात करें। आपको पता है कि ट्रेडिशनल स्कूल्स में बाज़ औक़ात टीचर्स लेसन तो दे देती हैं, एक दो दफ़ा रिपीट करवाएंगी, समझाएंगी, इससे ज़्यादा वो मतलब गुस्सा करेंगी और बच्चे उससे मतलब खौफ मतलब आ जाता है, मतलब उसमें कॉन्फिडेंट ख़त्म हो जाता है अपनी टीचर से पूछने का। तो क्या एआई उन टीचर्स उन स्टूडेंट की जो है वो मदद करेगी और किस तरह मदद करेगी? आपने ट्रेडिशनल स्कूल का पूछा कि एआई का मतलब पूछा, एआई के टीचर्स के बारे में एआई का पूछा? पूछ रही हूँ कि एआई उन कमज़ोर तलबा की कैसे मदद करेगी, क्योंकि वो तो घबराहट ले रहा है ना अपनी टीचर से। जी, जी। ऐसा तो ट्रेडिशनल स्कूल में होता है कि टीचर्स कहती हैं मेरे से पूछो, और जब बच्चों को समझ ना आए टीचर्स पूछते हैं बच्चे, तो टीचर्स कहती हैं कि मैंने आप लोगों को समझा दिया, अब आप लोगों ने ये खुद करना है। एआई का मतलब बच्चों के लिए एक सीखने का यही मौका है कि वो अपने उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करें और उसको करें, या तो वो चैट जीपीटी से कहें, वो आपको निकाल के देगा। और अगर वो उसने नहीं निकलवाना तो वो एक और भी ऐप है, बहुत सी एआई टूल्स हैं, आप उससे निकलवा सकते हो। मगर मेरा कहना है कि मैंने अब तक जो चीज़ गूगल से भी आप कोई चीज़ निकलवा सकते हो, बट अब तक मुझे जो चीज़ समझ नहीं आई वो मैंने यूट्यूब से ही सर्च चले किया। इसका यूट्यूब थोड़ा में सा मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाए। जी। जो चैट जीपीटी है उन तलबा की इस तरह मदद करेगी कि उन बच्चे को आसान तरीके से सिलेबस बना कर देगी। अगर उस बच्चे को उससे भी नहीं समझ आ रही तो वो मज़ीद उसमें आसानियाँ और बनाएगी सिलेबस में, ताकि बच्चे को उसको समझेगी किस तरीके से इसको समझ आती है वो उसको समझाएगी और बच्चा आसानी से अपनी जो एजुकेशन है वो आसानी से हल कर सकेगा। दूसरा, चैट जीपीटी से वो जितनी बार भी क्वेश्चन करेगा, पूछेगा कि मुझे ये सवाल नहीं आ रहा, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, तो चैट जीपीटी उसको बार-बार उतनी बार पूछने पे बताएगी, बल्कि चैट जीपीटी इसको खुद कहेगी कि बेटा अगर आपको सवाल नहीं आ रहा तो मुझे बताएं, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। तो चैट वो जीपीटी उसको मुख्तसर वो इस वो उसको तरह हेल्प आसान से करेगी। आसान मेथड में लेकर आई चैट जीपीटी। हाँ, जो ट्रेडिशनल तो स्कूल में ताकि टीचर्स होती है वो वो गुस्सा एक कर ही देती मेथड। हैं और चैट जीपीटी उनका कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो भी ग्रो करेगी साथ में, ताकि बच्चे के जी, अंदर कॉन्फिडेंट आ जाए और वो अपनी तालीम आगे मज़ीद हासिल कर सके। तो जी, थैंक यू जी। सो मच बेटा, आपने बहुत अच्छे-अच्छे आंसर दिए, बहुत अच्छे-अच्छे मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट भी काफ़ी है
مجھے خوشی ہوئی کہ آپ اے آئی کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں، اور امید ہے کہ آپ اگلے لوگوں کو بھی مشورہ دیں گے اس کی تعلیم حاصل کرنے کا، اور آپ انشاءاللہ اور کوئی ترقی کریں۔ مجھے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں نظر آتا۔ تو چلیں جی، ہمارے ناظرین کو امید ہے کہ یہ کوشچن ہمارے اور آنسر ہمارے پسند آئے ہوں گے اور ان کو کچھ فائدہ حاصل ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ بروڈکاسٹ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ضرور ملیں گے انشاءاللہ، اینڈ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔